Hello and welcome to this another exciting video of Source Astrology. I think this is Source Astrology video number 8. Do remember the number, okay? Because there is a specific reason why I'm putting the number. Because this numbers actually अगर आप एक से शुरू करोगे ना, आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा how you're going to learn step by step. Starting में ना अगर ऐसे abruptly आप चीजें देखोगे तो you will definitely get an information because each and every video is going to create an impact in your life if you are passionate about the subject of astrology. Casually तो बहुत सारी चीजें हैं. So that's why I'm really excited. So this is video number 8. This I am doing on 16th of June 2024. Today is a very special day. Today is Happy Father's Day. Okay, Father's Day. Fathers are very, very important. And this T-shirt I'm wearing, this has been gifted by my daughter. Thank you, my daughter Ashmita. So, I've got also very nice a message from one of my students. Why father is important? In my source numerology advanced program, we talk about the yin and yang. We explored into the world of yin and yang, which is actually very exclusive because how many people understand this yin and yang? Because in the year, when we did year was very important. From the year, the cosmic energy center that interact with your month and that makes your driver, that gives the energy, the fuel to the driver, so that this atma, this your soul or the Vedic number can pass through this world. So that's really exciting. And the yin yang are very important to create something which comes out of the source has the dualism, that is yin and yang. So the father is considered as yang, mother is yin. Yin and yang are required for sustenance, for everything. The father is yang. I got a very beautiful message from my students, and I really appreciate people sending. So this is saying thoughtful Father's Day. Let's acknowledge and honor the young energy in our life, which equips us with the dynamism, activism, and thought process, and finally makes us action oriented to achieve our goal. Yeah, father is very, very important. So though my father is not existing in this earth, maybe in the other dimension, but I really thank him for giving my soul an opportunity to purify, because father and mother are the gateways, which are very, very important, because they are the gateways which helps some souls who want to pass on this spiritual journey. Because उनके लिए ना जरूरी है, because ऐसे soul ना भटक रहे हैं चारों, according to the science of गरुड़ पुराण, हर सोल चाहता है अपने आप को प्यूरिफाई करना, हर सोल, बिकॉज उसने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ मिस्टेक्स की होगी. दैट्स व्हाई ही वांट्स टू पास थ्रू द स्पिरिचुअल जर्नी. तो उसको ना गेटवे चाहिए. तो मदर एंड फादर आर द गेटवेज जो उस आत्मा को अपॉर्चुनिटी देते, उस सोल को अपॉर्चुनिटी देते इस दुनिया में आने के लिए. एंड देन it helps from the universe, from mother earth, the most beautiful planet, the most beautiful mother. उनसे हेल्प मिलता है, हेवन से हेल्प मिलता है. हेवन इज द यंग एनर्जी, उससे हेल्प मिलता है. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. एंड उसके बाद किससे हेल्प मिलता है? Our planets, the most important planets. There are dasha systems, and I'm going to talk about that. So again, a very, very happy Father's Day to all of you, and really love. This is my really gratitude to all the fathers of the world. Do your dharma and the karma in the right way, so that, because your life is actually your karma, the way you take action, the way you think is actually helping shaping another soul to pass through the spiritual journey. Very, very important. अब किस तरह से हरकत करते हैं लाइफ के अंदर, what we do matters a lot, because we have a responsibility. So that's very, very important. So happy Father's Day to everyone, especially happy Father's Day to all the fathers. Okay, so let's come back to today's topic. Today, I'm going to take up a very, very exciting topic. The 4 important things. Now we are entering into the real study of astrology. अब हम study में enter कर रहे हैं. If you have a diary, note it down, because I always take something a little bit differently. I always try to give things in a different perspective, the perspective which are just not normal. So generally it is called as, there are 4 pillars of 3 pillars generally it is said of astrology, which you need to know. One is the birth time that gives us the promise of the chart. So let's try to understand in a different way. So there are 4 things. Let's directly come to the four things directly. So there are 4 things you need to understand. In my last video, I talked about the date of birth. Why date of birth is important? Date of birth क्यों जरूरी है? Because that is the time that determines क्या, वो जब हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो वो क्या डिटरमाइन करते हैं?
वो जातक का कौन सा पोजीशन है, कहाँ पे पैदा हुआ है, उस जगह को डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे लिए द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी रिक्वायर इज अ डेट ऑफ बर्थ, सेकंड मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट थिंग विच वी रिक्वायर इज अ टाइम ऑफ बर्थ, एंड द थर्ड थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज अ प्लेस ऑफ बर्थ। तो हम टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ क्यों लेते हैं? बिकॉज जब जातक एक जगह पर्टिकुलरली पैदा होता है, हमारी मदर अर्थ रोटेट कर रही है, हर हर टाइम रोटेट कर रही है। तो रोटेशन में जब जब रोटेट करती है, सो रोटेट में दो चीजें होती है। देखिए, एक चीज होती है कि आप जब धरती से कोई चीज देखते हो, आप देखते हो कि सारा प्लैनेट स्टार्स गैलेक्सीज बदल रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि सूर्य एक जगह से उठते दूसरी जगह पे चली जा रही है। क्या एक्चुअली वैसा हो रहा है? एक्चुअली नहीं हो रहा है। सूर्य अपने जगह पे सेंटर है, सारे प्लैनेट्स चारों ओर। इट्स अ वेरी बेसिक साइंस। So there are two theories. One is called as हेलियोसेंट्रिसिटी, एंड अदर इज कॉल्ड एज जियोसेंट्रिसिटी। नो, हेलियोसेंट्रिसिटी का ध्यान से सुनिएगा, अगर जरूरत पड़े हमेशा मेरे वीडियोस को स्टॉप करके दोबारा सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। एंड कीप ऑन राइटिंग द वर्ड्स। सो हेलियोसेंट्रिसिटी क्या मीन करते हैं? हेलियोसेंट्रिसिटी मीन्स जहां पे हम सन को, सूर्य को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं, और एक है जियोसेंट्रिसिटी जहां पे हम अर्थ को सेंटर मान के सारी चीजें करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टू अर्थ। सो जब भी हम ज्योतिष करते हैं तो हम अर्थ को एज ए सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर रखते हैं। ओके, और वहां पे जहां पे जातक पैदा होता है उसको पॉइंट ऑफ सेंटर रखते हैं हम। इसीलिए जियो सेंट्रिसिटी, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिसिटी जियो सेंट्रिक व्यू पॉइंट देखते हैं कि अर्थ से हमें दिखता है कि सूर्य भी चल रहे हैं, सूर्य भी मोशन में है। और रात जब होता है तब हम देखते हैं चंद्रमा भी चल रहा है, हमारे पास हमारी जोडियक्स भी चलती है, सारी चीजें चलती है। ओके, दैट्स कॉल्ड एज जियोसेंट्रिसिटी। सो दैट इज व्हाई apart from your time of birth, correct time of birth is your date of birth is required, time of birth is required, place of birth। So time of birth के लिए मैंने लास्ट वीडियो आपको बोला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ आपको अर्थ से और स्काई की पोजीशंस देता है, अर्थ से और उस पर्टिकुलर लोकेशन से। बिकॉज अर्थ तो राउंड है, अर्थ तो गोलाकार है ना, तो कहीं पे भी आप उसके जहां पे भी पैदा होते हैं वहां से एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा ना यूनिवर्स से। सपोज ये आप सपोज लीजिए मेरा ये अर्थ है, यहाँ से एक दूसरा चीज दिखता है, यहाँ से कुछ दूसरा चीज दिखता है। सो गोलाकार जो अर्थ है, डिफरेंट जगह से अगर एक एक जातक अलग अलग जगह पे पैदा हुआ तो वहां से पॉइंट ऑफ यूनिवर्स डिफरेंट दिखेगा। सपोज अगर जातक अर्थ के नीचे पैदा हो रहे, फॉर लेट अस use our this thing, and let me just use uh, my pad and show you the things. Let me take my pen and share it with you so that you understand better. uh, Quite good. Okay. So okay, so this is earth. ओके, अब हम जियोसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। सो सपोज जातक यहाँ पे पैदा हुआ है, तो जातक इज बोर्न समवेयर हियर। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो स्काई है, स्काई यहाँ से डिफरेंटली दिखेगा। जो स्काई है, ब्रह्मांड है, जो सपोज यहाँ पे हम एक रफ एक स्काई तो इनफाइनाइट है ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पे इस जातक के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा डिफरेंट इन्फ्लुएंस आएगा, यहाँ से इन्फ्लुएंस थोड़ा डिफरेंट आएगा। सिमिलरली जातक यहाँ पे पैदा हुआ है, यहाँ पे जातक पैदा हुआ है, तो यहाँ की यूनिवर्स थोड़ी डिफरेंट इन्फ्लुएंस करेगी। इट इज वेरी लॉजिकल, दैट इज व्हाई योर योर प्लेस ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट। आप कौन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में पैदा होते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू रिक्वायर द डेट ऑफ बर्थ, you require the time of birth, you require also the place of birth, that's very very important। now इससे क्या होता है, why the time and the place are important, इससे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है। now what is the important thing which comes up the moment the jataka takes the birth। I consider the birth of the jataka as the time of the birth। उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। okay, there are four important things। उससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है which is called as the promise in the chart। ओके, जिस मोमेंट में जातक पैदा होता है, जातक जातक कोई भी किसी भी एज में, तो वहां पे जैसे वो फर्स्ट ब्रेथ लेता है उस मोमेंट में उसके आसपास जितनी जो एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द प्लैनेट है। देखिए, सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलते हैं। जैसे हमें मालूम है सूर्य अपनी पोजीशन बदलता है, अलग अलग जोडियक्स में जाते हैं, चंद्रमा अपनी पोजीशन बढ़ता है। वैसे ही हमारे जितने भी ग्रह है, ग्रह के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जोडियक्स के बारे में। तो सिंपली हम समझ जाते हैं स्काई ना एक तरह का नहीं है, स्काई में हमेशा पोजीशन बदलती जा रही है, चीजों की चीजें घूमते जा रही है। तो
जैसे ही जातक पैदा होता है एक मोमेंट में एक स्काई में एक पर्टिकुलर प्लैनेट, जैसे सूर्य एक जोडियाक में है, चंद्रमा एक जोडियाक में है, मंगल बुध ऐसे अलग अलग जोडियाक में, वो जोडियाक में उस जोडियाक से एक फ्लैश प्रॉमिस आता है, एक प्रॉमिस आता है उस जातक के लिए कि उसकी जीवन शैली ऐसे ऐसी होगी, जीवन में इस तरह की घटनाएं होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉमिस ऑफ द चार्ट। जब हम कुंडली देखते हैं किसी का, कुंडली मतलब हम स्काई मैप देख रहे हैं, उस जातक जब पैदा हुआ है उसकी स्काई मैप देख रहे हैं। देयर आर वेरियस कुंडलीज, वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन कितने तरह के कुंडली होते हैं। एक्चुअली कुंडली है क्या, जोडियक्स है क्या, ये राशि है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे, हम धीरे धीरे करके आएंगे। बट आप एक चीज समझिए, जो कुंडली है वो क्या है, वो उस मोमेंट, जिस मोमेंट में वो घटना घटी, यहाँ पे किस किस रेस्पेक्ट में हम बात करें, इस यहाँ पे हम विथ रेस्पेक्ट टू द बर्थ ऑफ द जातक की बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू द बर्थ ऑफ जातक। द मोमेंट द जातक इज बोर्न, उस मोमेंट में एकदम हम स्काई मैप को फ्रीज कर देते हैं। दैट गिव्स अ प्रॉमिस कि उस पर्टिकुलर कुछ कॉम्बिनेशन से एक प्रॉमिस मिलता है जातक के लाइफ में, उसके जीवन में ये घटना घटेगी, उसका बचपन ऐसा बीतेगा, इस फैमिली में जाएगा, उसके माता पिता ऐसे होंगे, उसका एजुकेशन ऐसा होगा, उसका ग्रोथ ऐसा होगा, उसकी शादी ऐसी होगी, उसका ये बीमारी हो सकती है, उसका ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, इस तरह का भाग्य होगा, इस तरह से कर्म करेगा, इस तरह से गेन करेगा लाइफ में, इस तरह से मोक्ष मिलेगा। यस, उस तरह से पूरे फ्लैश में मिलते हैं। बहुत सारी कहानियां पता चलती है, क्योंकि ये जो ज्योतिष है ना, ये सिर्फ उस टाइम का नहीं है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, क्योंकि सोल ने चूज किया है टाइम, क्योंकि बेस्ड ऑन हिज पास्ट कर्मास। तो पास्ट कर्मास भी हमें पता चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्लैश पॉइंट। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो, अपार्ट दैट दिस इज द पिलर। कुंडली क्या है, कुंडली वो पॉइंट है जिस पॉइंट में, दैट्स कॉल्ड एज, दिस पॉइंट में हमें प्रॉमिस ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द कॉस्मिक यूनिवर्स मिलता है। सो प्रॉमिस इज सीन फ्रॉम द कुंडली, द D1 चार्ट। सारे वर्गासी बताते हैं, बट द मेन इंपॉर्टेंट हियर वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द D1 थिंग। सो फर्स्ट कम्स द प्रॉमिस। ओके, इवेंट तो हो गया कि ये घटनाएं घटेगी, वो आप जब ज्योतिष पढ़ोगे तो ज्योतिष में आप उस जीवन में क्या हुआ है, अगर एक मिडिल एज बंदा है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये हो सकती है घटना में, ये हो रही है अभी फिलहाल की, ये नहीं होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, द सेकंड इंपॉर्टेंट, एक हो गया प्रॉमिस, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, इस वर्ड को लिख लीजिए, प्रॉमिस इज सीन फ्रॉम कुंडली, बार बार बोल रहा हूं, प्रॉमिस इज सीन फ्रॉम द कुंडली। कुंडली उस मोमेंट की फ्रोजन एक स्नैपशॉट है, समझ, एक फोटो लिया है आपने, जैसे मोमेंट ये बच्चा पैदा हुआ, जहां तक पैदा, उस मोमेंट में एक स्काई का फोटो, he has taken the first birth and photo, that is frozen as कुंडली, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। उससे प्रॉमिस मिल रहा है कौन सा प्लैनेट, कौन सी पोजीशन, कौन सा नक्षत्र उसके जीवन में क्या प्रॉमिस डाले। सेकंड इज टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लैनेट्स उस जातक के जीवन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। ओके, डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं दशा। ओके, दशा। अच्छा, दशा ना बहुत तरह की होती है। ओके, इट्स लाइक वेरियस काइंड्स ऑफ दशा। यू हैव गॉट विंशोत्तरी दशा, यू गॉट योगिनी दशा, जैमिनी दशा, यू गॉट अ सुदशा, नारायण दशा। दशा की दुनिया ब्रिलियंट दशा है। ओके, सो व्हाट इज विंशोत्तरी, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। विंशोत्तरी मतलब ये जातक, ये जो पर्सन है, ये आप हो, आप जीवन में जो आपकी जो प्रॉमिस की गई है ना, जो घटनाएं घटे हुए, वो जो घटनाएं जब आएगी, एक एक प्लैनेट आपके जीवन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, आपने जब पैदा हुए उस मोमेंट में शायद एक प्लैनेट आपका जिंदगी शुरू करेगा, वो आपकी कुछ जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन एसोसिएशन विद सम अदर प्लैनेट्स। ओके, इसको बोलते हैं, जो मेन प्लैनेट है उसको बोलते हैं महादशा, वो महादशा लॉर्ड होता है। सो महादशा लॉर्ड हो सकता है उसकी कोई पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है आप उसके बीच में जन्म लियो, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द मून। डिटेल में बाद में समझाऊंगा, बेसिक समझ लीजिए। सो महादशा लॉर्ड होते हो, महादशा आपका आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ही कम्स विद अंतरदशा लॉर्ड एंड ए प्रंतरदशा लॉर्ड, एंड और भी दशास होती हैं, देयर इज अ सूक्ष्म दशा एंड अदर दशास आल्सो, बट दीस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट हर एक दशा हैज डिफरेंट, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ दशा। एक दशा, जैसे विंशोत्तरी की बात करें तो वो बोलता है कि आप जीवन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, बिकॉज विंशोत्तरी इज बेस्ड ऑन योर मेंटल स्टेट, आपकी माइंड, आपकी इमोशंस। इट इज विथ रेस्पेक्ट टू द चंद्रमा से देखते हैं हम, वो चीज चंद्रमा की दशा होती है। सो चंद्रमा से मेजर की चंद्रमा की प्रोग्रेशन से वो दशा आता है। सो इट टेल्स यू, सो देयर आर दशा लाइक चर दशा, इट टेल्स अबाउट योर आत्मा, आपका आत्मा क्या करने आए हैं। देयर आर दशास विच इज कॉल्ड एज नारायण दशा। क्या हम बोलते हैं ना, आप तो ये चाहते हो, भगवान क्या चाहता है आपसे, तो भगवान क्या चाहता है ये भी दिखाई देता है नारायण दशा वगैरह जब आप करोगे।
देन आपके हर टाइम में ना यूनिवर्स कॉस्मोस आपको कुछ लक्ष्य देते हैं, वो हम देख सकते हैं लक्ष्मी श्री लग्न की पोजीशंस की मूवमेंट से। सी, I am just giving you a way to see charts. Okay, these for some of you it may be very new what I'm talking about. Some advanced students of astrology already know about, but this is very exciting.